Class 7th, our next chapter is chapter number 4, that is rational number. Before we start this chapter, let's recall some definitions which we have learned in the previous classes. First is natural numbers. Natural numbers. Natural numbers are numbers which starts from 1, okay, 1, 2, 3, 4, so on, okay. These are natural number. But next is whole numbers that starts from 0, okay, including all natural numbers including 0 is called whole number. 0, 1, 2, 3, 4, so on, okay. So this is whole number. Next is fractions. Fractions are the numbers which can be written as a upon b, okay, where a and b both are natural numbers, okay. Next is integers. Integers you have studied in the previous chapter or in the previous class also, that all negative and positive numbers are called integer, like 1, 2, 3, 4, these are integers, as well as -1, -2, -3, -4, so on. These are integers, okay. Next is rational number. Next our topic is rational number. So rational numbers are the numbers which can be written in the form of p upon q, where q cannot be equals to 0, and p and q are integers. P and q are integers. Now you will say, what is the difference between fractions and integers? So in fractions numbers are natural numbers, okay. They are also written in the form of like a upon b hai, so you can write as numerator and denominator. इसमें भी rational number में भी you are writing them as numerator and denominator, but difference is in fractions all natural numbers are there, and in rational number integers are there, okay. P and Q are integers. Rational numbers are of two types. First is positive and second is negative. First is positive and second is negative. Positive rational numbers, which their numerator, the upper one, and denominator, the lower one. जैसे if we are writing 3/4, so 3 is numerator. 3 is numerator and 4 is denominator. So numerator for positive rational number, the definition will be both the numerator and denominator may be positive or negative. They both should be negative or positive, okay. So 3 is numerator and 4 is denominator. So for positive rational number, both numerator and denominator may be either positive or negative. They both may be positive or negative, like -3 and -4, that will be also a positive rational number, because minus will be plus and they may be written as 3/4, okay. Either if you are writing 3/4 or -3/-4, both are positive rational number. Now negative rational number, in that either numerator or denominator
may be negative. One of them may be negative, like minus 3 by 4 is negative rational number, or 3 by minus 4, this is also negative. Got it? If both are positive or both are negative, then they may be they can be positive rational number. If one of them, either numerator or denominator, is negative, then it is negative rational number. Now next is equivalent rational number. Okay, equivalent means their values should be equal. Like if I am writing a rational number like minus 3 by 4. Okay, so equivalent rational number can be obtained by multiplying them by same number, or multiplying or dividing by them by same number. Like minus 3 by 4, if I multiply them both numerator and denominator by 2, let's suppose if I multiply them by 2, okay, so it will be minus 6 by 4 by 8, sorry, minus 6 by 8. So minus 3 by 4 is equivalent to minus 6 by 8. Okay, if I multiply them by 3, minus 3 by 4, multiply them by 3, so it will be minus 9 by 4 is 12. So that is equals to minus 9 by 12. Okay, again if you multiply them by 4, 3 by minus 3 by 4 multiplied by 4, okay, both numerator and denominator, so it will be minus 12 and 16. Okay, as you can see, this is table of 3, 3, 6, 9, 12, 4, 8, 12, 16. These are all equivalent rational numbers. Okay, next you can obtain rational number by dividing equivalent rational number by dividing them by same number, same non-zero number. Like if I divide minus 9 by 12 by 3, okay, because both are divisible by 3, therefore I have divided them by 3. Or you can find by finding their SCF. Okay, if you find SCF of numerator and denominator, you can find the number by which you can divide both of them. Okay, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है या प्रीवियस चैप्टर में भी किया होगा, जो 9 डिवाइडेड बाय 3 it will be 3, and 12 divided by 3 will be 4, and minus sign is there, so it will be minus. So हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं? ईदर बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, और बाय डिवाइडिंग देम बाय द सेम नंबर. और किससे डिवाइड करेंगे? मैक्सिमम पॉसिबल नंबर क्या है वो आपको एचसीएफ फाइंड करने से पता चलेगा. जैसे कि आप बोलेंगे 9 और 12 को मैंने 3 से ही क्यों डिवाइड किया? क्या करेंगे आप? 9 और 12 का यू कैन फाइंड देयर एचसीएफ, 9 एंड 12. ओके, 3 3 9, 3 1 3, 2 6 12, 2 3 6, and 3 1 3. So what is their HCF? HCF means highest common factor. So HCF क्या है इनका? That is 3. ओके, इसलिए हमने इनको 3 से डिवाइड किया. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4A. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 is, okay, so our question number 1 is, what is rational number? What are rational numbers? So we have to write the definition of rational number. Rational numbers are the numbers which can be written in the form of P upon Q, where Q cannot be equals to 0, and numerator and denominator, both P and Q are integers. This is the answer of first question. Second question, you can see the questions in the book. Question first question, second part, give example of 5 positive and 5 negative rational numbers. So as I have explained you, positive rational numbers are the numbers which in which numerator and denominator both are either positive or both are negative. Okay, so you can give example, 5 examples आपको देने हैं. 5 negative rational numbers, 5 negative rational numbers जिसमें either numerator और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक जो है वो नेगेटिव होगा. ओके, दोनों नेगेटिव होंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर में चेंज हो जाएगा, इसलिए दोनों को
पॉजिटिव रैशनल नंबर में चेंज होएगा, इसलिए आपको दोनों को नेगेटिव नहीं करना है, या तो आप न्यूमरेटर को नेगेटिव कीजिए या फिर डिनोमिनेटर को नेगेटिव कीजिए। इज़ देयर एनी रैशनल नंबर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव? ऐसा कोई रैशनल नंबर है जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है? सो यस, ज़ीरो जो है दैट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट एज 0/1। कोई भी नंबर है लाइक 3 अगर लिखा है तो यू कैन चेंज इट इनटू रैशनल नंबर बाय राइटिंग 1 इन डिनोमिनेटर। यू कैन ऐड 1 इन डिनोमिनेटर में 1 आप ऐड कर सकते हो, न्यूमरेटर में ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दैट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द नंबर। लाइक इफ आई राइट 1/3, 1/3 इज जो है उसकी वैल्यू बिल्कुल चेंज हो गई। ओके, एंड 1/3 मीन्स जो एक मान लो सर्कल है उसके 3 पार्ट्स अगर हम करते हैं तो दैट इज़ 3rd पार्ट, ठीक है, यानी 1/3, यानी 3 में से 1 पार्ट, दैट इज़ 1/3। बट 3/1 मीन्स कंप्लीट 3, ऑल 3 पार्ट, दैट मेक्स 1। ओके, यानी कि इसके पूरे 3 पार्ट्स, यानी मीन्स ये कंप्लीट 3 है ना, ऐसे 3 होने चाहिए, तब ये हो गया 3/1। ओके, गॉट इट? दैट 3/1 मीन्स 3 complete and 1/3 means 1/3 part of the whole. Okay, so that is different. Now question number 2 is which of the following are rational numbers? इनमें से कौन से rational numbers है? So rational numbers are the numbers which can be written in the form of P/Q. Okay, so question number 2, which of the following are rational numbers? So first is rational number, second one is also rational number, third is also, fourth, fifth, 6 can be written as 6/1, तो ये भी रैशनल नंबर है। -3, यस, -3/1 लिख सकते हैं आप। ओके, 0/1 लिख सकते हैं, एंड अगेन 0/1 लिखा हुआ है 8th में, तो ये भी रैशनल नंबर है। बट 1/0, तो एज वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर इज दे कैन Q कैन नॉट बी 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो 9th and 10th आर नॉट पॉसिबल। ओके, now question number 3, write down the numerator and denominator in each of the following rational number. So जो ऊपर वाले हैं उनको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे हैं उनको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। लाइक 8 इज़ न्यूमरेटर एंड 19 इज़ डिनोमिनेटर, 5 इज़ न्यूमरेटर एंड -8 इज़ डिनोमिनेटर, -13 इज़ न्यूमरेटर एंड 15 इज़ डिनोमिनेटर। ओके, एंड लास्ट जो 5th है इसका पार्ट, दैट इज़ 9, तो यू कैन राइट 9/1, तो 9 न्यूमरेटर हो जाएगा एंड 1 विल बी डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज रैशनल नंबर। इनको आप रैशनल नंबर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? बाय एडिंग 1 इन देयर डिनोमिनेटर। लाइक 5/1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, -3/1, 1/1, 0/1, -23/1। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर? तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, पॉजिटिव रैशनल नंबर में इधर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ शुड बी नेगेटिव और बोथ शुड बी पॉजिटिव। तो इधर तो जैसे फर्स्ट इसमें न्यूमरेटर पॉजिटिव है बट डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, पॉजिटिव नहीं है। सेकंड वन इज़ ऑल्सो नेगेटिव रैशनल नंबर बट थर्ड इज़ पॉजिटिव, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोथ आर नेगेटिव, सो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। फोर्थ इज़ ऑल्सो पॉजिटिव रैशनल नंबर, फिफ्थ इज़ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड सिक्स्थ इज़ ऑल्सो पॉजिटिव रैशनल नंबर बिकॉज यू कैन राइट 8/1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रैशनल नंबर? तो नेगेटिव आपको देखना होगा जिसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक जो है नेगेटिव है। लाइक थर्ड नेगेटिव है, फोर्थ नेगेटिव है, फिफ्थ इज ऑल्सो नेगेटिव बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग -6/1 तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो रहा है, डिनोमिनेटर नहीं हो रहा है। सिक्स्थ इज ऑल्सो, फिफ्थ एंड सिक्स्थ दीज आर ऑल्सो नेगेटिव। फर्स्ट एंड सेकेंड आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव रैशनल नंबर। नाउ फाइंड 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके इक्विवेलेंट आपको 4 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया इनको मल्टीप्लाई करके आप फाइंड करेंगे। लाइक फर्स्ट इज 6/11, लेट्स सॉल्व दिस। सो इट इज़ 6/11। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको 6/11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टार्ट विथ 2 बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने से देयर विल बी नो चेंज, सो स्टार्ट विथ 2। ओके, 6 2s are 12 and 11 2s are 22. Then 6/11 multiplied by 3. 6 3s are 18, 11 3s are 33. Then
6 by 11 multiplied by 4. Okay, 6 4s are 24, 11 4s are 44. Then 6 हमें 4 फाइंड करना है तो 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग देम बाय 1, तो 1 को हमने छोड़ दिया है, तो इसके लिए हम इसको 5 से करेंगे. 6 5s are 30, 11 5s are 55. So now 6 by 11 is equivalent to 12 by 22 is equivalent to 18 by 33 is equivalent to 24 by 44 is equivalent to 30 by 55. Okay, you can see that table है यहाँ पे देखो 11 12 18 24 30 11 22 33 44 55. So in this way you can find 4 equivalent rational numbers. Now question number 8 is write each of the following as rational number with positive denominator. आपको इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में चेंज करना है, तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव है तो नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, और ऑलरेडी अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं हम 8 का फर्स्ट पार्ट है 12 by -17. क्वेश्चन नंबर 8 इज चेंज द डिनोमिनेटर इनटू पॉजिटिव. डिनोमिनेटर को आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, 12 -17 मल्टीप्लाइड बाय, इनको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये एक प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर्स की. अगर इनमें क्या होता है, डिनोमिनेटर को हम मैक्सिमम टाइम ऐसे करते हैं कि डिनोमिनेटर में से माइनस हम हटाते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, तो माइनस माइनस इट विल बी प्लस. 17 1 सा 17, देखो वैल्यू में चेंज नहीं हुआ है, एंड 12 प्लस माइनस माइनस एंड 12 1 सा 12. तो ये माइनस साइन जो है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया. हम डिनोमिनेटर में से माइनस साइन को हमेशा हटाते हैं. ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, बट जैसे नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट -8 by -19. ओके, इसमें क्या होता है, दोनों में ही नेगेटिव है. आपको डिनोमिनेटर में से हटाना है तो मल्टीप्लाइड बाय -1, ये हमने देखा है -1 से मल्टीप्लाई करने से हट जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया. 8 1 सा 8 एंड माइनस माइनस प्लस 19 1 सा 19. ओके, सो वेन एवर यू वॉन्ट टू चेंज द साइन ऑफ डिनोमिनेटर का अगर साइन आपको माइनस से प्लस में चेंज करना है तो आपको उसको डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करना है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई जब भी करते हो तो दोनों को ही करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को. क्वेश्चन नंबर 9 इज 5 by 18 एक्सप्रेस 5 by 18 एज रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 15. न्यूमरेटर 15 बनाना है इसका, तो 15 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 को हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, लेकिन 8 को भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर. दोनों को आपको सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है, ओके ओके. नेक्स्ट इज -10 लाना आपको, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा, यानी 5 की टेबल में चेक कीजिए, 5 2 10 होता है. ओके, सो बट यहाँ माइनस है तो -2 से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है. ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्सप्रेस 4 by 7 एज रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 21 एंड 35. डिनोमिनेटर चाहिए तो भी आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है. तो 7 की टेबल में 21 कब आता है, 3 टाइम्स आता है. ओके, सो 4 by 7 शुड बी, सो 4 by 7 में दोनों में ही आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही 3 से मल्टीप्लाई करना है. 4 3 से 12 हो जाएगा और 7 3 से 21 हो जाएगा. नाउ वी वांट -35 एज डिनोमिनेटर. सो 7 की टेबल में 35 5 टाइम्स आता है, लेकिन माइनस साइन है तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप. 4 by 7 4 मल्टीप्लाइड बाय -5 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय -5. सो 4 5s are 20, सो -20 हो जाएगा, एंड 7 5s are 35, बट माइनस उससे करेंगे आप -5 से, सो -35 हो जाएगा. ओके.